सो आज का टॉपिक है वी आर गोइंग टू डिजाइन a sequential circuit for a given state diagram and we have to design the circuit using D type flip-flops. Okay, so we have to design a sequential circuit using D type flip-flops and we have to use state reduction if possible. ठीक है, so ये आज का क्वेश्चन है. We have to design a sequential circuit using D type flip-flops. So we have to use a state reduction technique if it is possible there for the given circuit. The circuit is given here. So these are states A, then we have got B state, and then C, D, E, F and G. ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट्स दिए हुए हैं. तो in this we have figure like this one, this transition from A to B with input 1 and output 0, then transition from B to D with the input 0 and output 0, then we have got a transition from D to E with input 0 and output 1, then from E to F we have input is 0, output is also 0, then transition from the F to the same state F with input 1 and 0, then we have got transition from F to G with 1 and 0, then G back to F transition with the given values 0, 0. There is also transition from D to F with the input and output 1, 0. Then we have got transition from C to G with inputs 0 and 1. Again, we have transition from C to D with the input output 1, 1. Then again B to C with the input and output 1 and 0. Then from A to C with 0, 0. We have also transition from E to A. This E to A so with the input 1 and output 1, and also from G to A with the input and output values 1 and 1. So this is the given state diagram. ठीक है ना. तो अब हमें क्या करना है कि we have to design a circuit for this particular. लेकिन we have to use state reduction technique to simplify this state diagram. तो जैसे हमने लास्ट जो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसका प्रोसीजर क्या है. तो उसके लिए एज यू नो दैट, तो सबसे पहले we'll write down the state diagram, state table for this particular given figure. So let us start with the state table for this particular state diagram. So now state table, so we're going to start it this one.
solution. तो we'll first जो इसका state table है, as you know that we have to write the present state, then next state and the output. ठीक है, अब आप देखोगे इसमें तो states कितने हैं, A B C D, these are all the given states to us. तो लेकिन यहाँ पे दो चीजें, the busy circuit has got one input as well as output, क्योंकि यहाँ आप देखोगे वन एंड जो पहला वन होता है, इट इज आवर इनपुट एंड आउटपुट इज वन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट वी रिप्रेजेंट लेट आवर इनपुट जो हमारा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एंड लेट अस जो आउटपुट है वी रिप्रेजेंटेड बाय वाई, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे कि अब दो केसेस हैं, जब आप जो x है, अब देखो यहाँ पे x1 है, कहीं पे x0 है, तो x कैन हैव टू वैल्यूज 0 और 1, so we'll write the input is either 0 or input is either 1. इन द सेम वे तब हमें देखना है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे आउटपुट जो है y, उसमें भी दो चीजें हैं, या जब x0 होगा या x1 भी इनपुट होगा, तब हमारा आउटपुट y क्या होगा, ठीक है। तो सो दिस इज अवर y के लिए है, एंड दिस इज अ नेक्स्ट स्टेट। तो ये तो अब उसका टेबल है, ठीक है। तो अब हम जो हमारे स्टेट्स दिए हैं, वी हैव गॉट हियर स्टेट्स A B C D, उसको फोन लगा, A B C D E F and G, ठीक है। तो ये हमारे स्टेट्स, प्रेजेंट स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि फ्रॉम दिस वी कैन derive this state diagram, जो state table from this given state diagram. अब आप देखोगे यहाँ पे we will move to this one. So in this figure assume that present state is A, starting में A है यहाँ पे, हमें देखना है इसका नेक्स्ट स्टेट क्या है, क्योंकि अब देखो नेक्स्ट स्टेट इसमें B को भी जा रहा है और इसका C भी है, लेकिन हमें देखना है कि पहला वाला केस है x जब 0 है, तब हमें देखना है कि नेक्स्ट स्टेट क्या है। तो x यहाँ पे, अब ये जो पहला वाला वैल्यू x है, तो इस इन दिस केस x is 0, हियर इट इज x is 1, हमें देखना है व्हेन x is 0, सो व्हेन x is 0 ट्रांजिशन फ्रॉम A टू C, तो यहाँ पे आपको लिखना है C, ठीक है। तो व्हेन आवर x is 0, अब नाउ व्हेन x is equal to 1 ट्रांजिशन इज टू द B, तो यू राइट ट्रांजिशन इज B व्हेन आवर x is equal to 1। अब एट द सेम टाइम आपको देखना है इन दो केसेस में हमारा y क्या है, ठीक है ना। जब हमारा x 0 है, यहाँ पे आउटपुट भी 0 है, जब यहाँ पे x 1 है, तब भी हमारा आउटपुट यहाँ पे देखोगे 0 है, तो यहाँ पे 0, तो हो गया फर्स्ट। फिर आप नेक्स्ट, अब यहाँ देखोगे जो हमारा बी स्टेट है, अब बी एज्यूम करो हमारा प्रेजेंट स्टेट बी है, तो बी हमारा ये है। अब बी पे ट्रांजिशन, बी से जो ट्रांजिशन हो रहा है, या तो डी में जा रहा है या तो सी में जा रहा है, लेकिन हमें देखना है जब हमारा इनपुट 0 है, तब ये किस में जा रहा है, तो ट्रांजिशन मैंने इनपुट इज 0, ट्रांजिशन इज फ्रॉम डी, यू राइट हियर डी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखोगे आउटपुट समय 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखोगे। द एंड एट द सेम टाइम व्हेन ट्रांजिशन इज टू बी एट द टाइम आवर x is 1, तो व्हेन x is 1 ट्रांजिशन टू c, तो यहाँ पे c में जा रहा है, तो आउटपुट इन दिस केस अगेन वो है आउटपुट 0। अब आप एज्यूम करोगे ना c, अब c में भी देखोगे c से ट्रांजिशन जो या तो g में जा रहा है ट्रांजिशन, या नेक्स्ट स्टेट इसका d है, ठीक है, c का नेक्स्ट स्टेट या g है, नेक्स्ट स्टेट d है। अब हमें देखना, लेकिन हमारा व्हेन x is 0, व्हेन x is 0 ट्रांजिशन इज टू g, तो यहाँ पे लिखेंगे g। अब उसके बाद लेकिन इसमें आउटपुट हमारा 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट इज 1। अब जब हमारा डी पे जा रहा है, स्टेट नेक्स्ट स्टेट सी का नेक्स्ट स्टेट डी है, उस समय हमारा इनपुट 1 है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये डी में जा रहा है, तो डी लिखोगे यहाँ पे। एट द सेम का आउटपुट यहाँ पे 1 देखोगे यहाँ पे, सो हो गया आउटपुट 1 है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इन द सेम वे आपको क्या करना है, आप देखोगे उसके बाद डी पे, अब डी जो है हमारा यहाँ पे ये है, तो इसका नेक्स्ट स्टेट या तो ई है, नेक्स्ट स्टेट या एफ है, लेकिन हमें देखना है जब हमारा इनपुट 0 है, जब इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट ई है, क्योंकि एक्स इज 0, इनपुट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज ई। अब यहाँ पे इन द सेम है, लेकिन आउटपुट समय 1 है, तो यहाँ पे यू राइट 1 हियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट जब एफ है, तब हमारा इनपुट 1 है लेकिन आउटपुट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट इज एफ, तो एफ क्योंकि यहाँ पे आउटपुट हमारा 0 है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट 0।
ठीक है ना। इन द सेम वे आपको क्या करना है, अब ई पे देखना है, ई जूम करो, ई हमारा प्रेजेंट स्टेट है। अब नेक्स्ट स्टेट इसका क्या है, या तो हमारा एफ है या तो हमारा ए है, लेकिन हमें देखना है जब हमारा इनपुट जीरो है, तो इनपुट जीरो यहाँ पे है, तो इसका नेक्स्ट स्टेट एफ है। अब हमारा आउटपुट क्या है, जीरो। तो एट द सेम टाइम जब हमारा नेक्स्ट स्टेट ए है, तो जब नेक्स्ट स्टेट इज ए, कब, व्हेन आवर एक्स इज वन एंड आउटपुट हमारा वन है। अब उसके बाद एफ स्टेट रिज्यूम कर लो, तो एफ यहाँ पे है, एफ के भी या तो नेक्स्ट स्टेट एफ का सेम रह रहा है, तो अगेन घूम के इसी में वापस आ रहे हैं, इसका नेक्स्ट स्टेट एफ का एफ ही है, लेकिन विद द कंडीशन व्हेन इनपुट इज वन। नेक्स्ट, और दूसरी बात है कि जब एफ का स्टेट इट गोज टू द नेक्स्ट स्टेट इज जी, बट व्हेन इनपुट इज जीरो, एफ का नेक्स्ट स्टेट जी है जब हमारा इनपुट जीरो है, लेकिन आउटपुट वहाँ पे भी जीरो है। अब यहाँ पे देखोगे एफ टू एफ, तो यहाँ पे एफ, तो एफ का नेक्स्ट स्टेट एफ ही है, लेकिन व्हेन आवर इनपुट इज वन, इनपुट यहाँ पे वन है और आउटपुट इज जीरो। तो हो गया ये भी। अब लास्ट जो है हमें क्या करना है कि अब जी का देखोगे आप, अब जी का एज्यूम करो जी स्टेट ये है, तो यहाँ पे भी जो नेक्स्ट स्टेट इसका या तो एफ है या इसका नेक्स्ट स्टेट ए है, लेकिन हमें देखना है जब इनपुट जीरो है तो किस में जा रहा है, नेक्स्ट स्टेट एफ है, तो यहाँ पे लिखोगे एफ। अब एट द सेम टाइम आउटपुट क्या है, आउटपुट जीरो है। अब यहाँ पे जी का नेक्स्ट स्टेट क्या है, जी का नेक्स्ट स्टेट ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हाँ, तो इसमें ये है नेक्स्ट स्टेट है ए, लेकिन इनपुट इज वन, आउटपुट इज वन, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट हमारा ए है, इट इज आउटपुट इज वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि ये वन वन है, यहाँ पे इसमें ये है। तो ये हमने क्या किया है, तो वी हैव फिल्ड अप दिस वन, ठीक है ना। तो हमने आप यहाँ पे फिलअप किया, तो यहाँ पे वन मोर थिंग जस्ट यू चेक इट आउट, एफ, एफ का फिर से चेक कर लो। तो एफ का जो है नेक्स्ट स्टेट जो है, एफ तो या तो जी में जा रहा है, ठीक है ना। तो एफ जो या तो जी में जा रहा है, यहाँ पे इसमें चेक करेक्ट दिस वन, इट इज हियर वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आउटपुट इसका वन है, तो जब एफ टू जी जा रहा है, तो एफ टू जी जा रहा है हमारा, तो उस समय हमारा आउटपुट यहाँ पे वन है, ठीक है। तो ये हमने एज पर दिस वन, क्योंकि एज पर स्टेट डायग्राम हमने यहाँ पे स्टेट टेबल बना के, अब नाउ हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें कोई इज देयर जो रिडक्शन जो है इसमें क्या पॉसिबल है, इसमें कुछ रिडक्शन, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द रिडक्शन, ठीक है ना। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें प्रोसीजर पता है कि अगर हमारा नेक्स्ट स्टेट, कोई भी स्टेट जो है हमारा प्रेजेंट स्टेट, अगर उसका नेक्स्ट स्टेट और उसके आउटपुट सेम है, तो देन वी कैन एलिमिनेट, एक को एलिमिनेट कर सकते हैं हम। अब हमें वही देखना है कि कुछ इसमें जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं उसका नेक्स्ट स्टेट दोनों का अगर सेम होगा। नाउ अब यहाँ पे आप यू विल ऑब्जर्व वन थिंग हियर, ये जो हमारा ये वाला स्टेट है ई स्टेट और जी स्टेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ई और सी, अब देखो कि यहाँ पे भी इसमें जो नेक्स्ट स्टेट है एफ एंड ए, यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेट एफ एंड ए है, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट सेम है, जीरो एंड वन, यहाँ पे भी जीरो वन, तो इसका मतलब हमारा जो ई है, और E इज इक्वल टू G, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एलिमिनेट दिस वन, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको ये जो G को, ठीक है ना। तो अब G को हम हटा सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा रिड्यूस हो गया स्टेट टेबल, ठीक है। अब ये तो देन अब देखेंगे क्या उसमें और कुछ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस दिस फर्दर। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो डी और एफ है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा जो जी है, जी किसके बराबर है, वो ई के बराबर है, तो अब यहाँ पे जो जी है उसको हम ई लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जहां जहां भी कहीं आपको जो जी है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ई से, तो यहाँ पे भी वी गॉट यू कैन रिप्लेस इट बाय ई, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारे जो, अब यहाँ पे देखोगे ये वन नाउ फाइंड दिस वन, जो हमारा जो ये वाला स्टेट है कौन सा, डी एंड एफ, देखो ये दो। अब यहाँ पे भी एफ एंड ई जो है, ठीक है ना, एफ और ये जो डी है, इसका नेक्स्ट स्टेट ई एफ है, इसका भी ई एफ आ गया, वन जीरो आउटपुट यहाँ सेम है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यू कैन एलिमिनेट दिस वन। अब हमारा स्टेट टेबल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सो दिस इज आवर रिड्यूस्ड दिस वन। अब हम देखेंगे कि फर्दर पॉसिबिलिटी है क्या इसमें,
फर्दर इसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो वी विल चेक इट इफ देयर इज एनी रिडक्शन फर्दर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर, ठीक है, स्टेट टेबल। अब यहाँ पे क्योंकि अभी देखो यहाँ पे एफ ए है और कहीं एफ ए इसमें तो नहीं हो रहा है सेम, ठीक है ना। तो एफ हमने, ठीक है ना, तो एफ एफ हमने यहाँ पे और एक जो स्टेट इससे पहले लिखा था, तो दैट वाज हमने किया था डी और एफ। सो एफ किसके बराबर था, तो डी को एफ के बराबर। अब और एक चीज़ आपको देखना, कहीं पे भी अगर आपका एफ है यू कैन रिप्लेस बाय डी, तो एफ यहाँ पे है, यहाँ पे आप डी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी डी लिखना है, क्योंकि इससे पहले जो एलिमिनेट सेकंड रिडक्शन हमने की तो वहाँ पे डी इज कॉल्ड एफ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी डी आ गया, सो ये जो डी, देन यहाँ पे भी आप देखो ए डी डी सी एंड बी आ गया, ठीक है ना। तो ये हमने रिड्यूस, तो फर्दर रिडक्शन आप देखोगे पॉसिबल है क्या इसमें कहीं पे, आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिडक्शन। यहाँ पे डी सी है, यहाँ पे डी ए है, तो नेक्स्ट स्टेट सेम नहीं है कहीं पे भी, तो फर्दर रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। सो वी हैव रिड्यूस्ड दिस वन यूजिंग दिस रिड्यूसर टाइप, ठीक ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि नेक्स्ट हमें, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिजाइन द सर्किट, तो ये हमारे पास ये आ गया। तो एज आई टोल्ड यू कि जब हमें डिज़ाइन सर्किट करना है तो हमें क्या क्या, वह है तो असाइन द वैल्यूज टू दीज स्टेट्स, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई ए है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको क्योंकि अब यहाँ पे अगर 4 होते तो 2 बिट से रिप्रेजेंट करते, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 अगर होते तो 2 बिट से 0 0 0 1 1 0 1 1 रखते, लेकिन यहाँ पे वी हैव गॉट 5 स्टेट्स, तो पॉसिबल नहीं है। तो 5 स्टेट्स के लिए वी नीड हाउ मेनी बिट्स, 3 बिट्स। अब 3 बिट से, अब यहाँ पे मैं अब 3, ये ध्यान में रखो, अब 3 जो बिट्स है, ठीक है ना। तो अब जो 3 बिट्स जो इसमें है, तो उसके लिए आपको क्या, सपोज फॉर 3 बिट्स, तो वी कैन रिप्रेजेंट 0 0 0 0 0 1 0 1 0, that is 2, 0 1 1 is 3, 1 0 0 is 4, 1 0 1 is 5, ठीक है। तो 1 1 0 is 6, 1 1 1 7, तो ये टोटल 8 आ गए। अब आप, लेकिन 8 से आपको रिप्रेजेंट कितने करने हैं, हमें खाली 5। आप इनमें से कोई भी 5 सेलेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन असाइन दीज बाइनरी वैल्यूज टू द पर्टिकुलर स्टेट, जो मैंने कल भी बता दिया आपको, ठीक है ना। स्टेट असाइनमेंट जो हमने कल किया। तो अब आपके पास वी हैव गॉट दीज वैल्यूज, तो यू कैन असाइन, सपोज ए को मैं 0 0 रख सकता हूँ या ए को 0 0 1, तो इसमें से आपको हैव टू सिलेक्ट द 5 आउट ऑफ दीज ग्रुप, तो आप असाइन कर सकते हो। अब यहाँ, अब व्हाट आई एम गोइंग टू, सपोज मैं ए का वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 0 0 0, आई विल असाइन दिस वैल्यू टू ए, ठीक है ना। तो अब ये जो वैल्यू है ये मैं ए के लिए असाइन करूँगा 0 0 0। अब उसके बाद बी के लिए, सपोज यहाँ पे मैं 0 0 इज़ फॉर बी के लिए मैं असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे ये वैल्यू। उसके बाद सी के लिए ये रखेंगे हम, ठीक है ना। देन डी के लिए सपोज इसको मैं 3 को नहीं, मैं 4 को रख रहा हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप किसी की वैल्यू को भी रख सकते हो, ठीक है। डी ई के बाद सपोज हम यहाँ पे 1 4 5, देन 6 इज 1 1 0, ठीक है ना। तो सपोज ई, सो ई में रख रहा हूँ कि यहाँ पे 0 1 1, सपोज इसको मैं ई, मतलब आई कैन इंटरचेंज, ई को रख रहा हूँ यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है ना। तो ये तो 4 अब आ गए, तो 2 अब मेरे पास बच रहे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दीज 2 वैल्यू, आई एम असाइनिंग दीज वैल्यू। सो ए बी सी डी ई, अब मैंने 5 को नहीं ले रहा हूँ, 6 को नहीं ले रहा हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे असाइन की ये वैल्यू। ये आपकी यू हैव गॉट चॉइस, यू कैन गिव एनी बाइनरी वैल्यूज टू एनी दीज स्टेट्स। तो अब ये यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो स्टेट टेबल है यहाँ पे, सो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे ए इज नाउ 0 0 0, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कैन राइट हियर नाउ 0 0 0। अब बी जो है, बी हमारा 0 0 1 है। देन जो सी है हमारा 0 1 0 है। देन सी के बाद डी है, इट इज़ 1 0 0, ठीक है, जो हमारा डी है 1 0 0 है। उसके बाद ई है 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, तो सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 1 0, तो यहाँ पे एज इट यू विल राइट 0 1 0। देन डी हमारा है 4 1 0 0।
उसके बाद ई जो है हमारा इट इज ई जो है मेरा 011 है। उसके बाद ई यहाँ पे भी है 011, ठीक है। उसके बाद डी जो हमारा है इट इज 100। यहाँ पे भी आप देखो कि नेक्स्ट स्टेट जो है बी है, तो बी हमारा 001 है। उसके बाद सी है, सी इज 010। उसके बाद डी हमारा है 4, यहाँ पे भी डी ही है, अगेन इट इज 4 अगेन 100। देन ए इज 000, ठीक है। तो हमने ना वी हैव असाइन्ड दिस वैल्यू, तो हमने इसको रिप्लेस किया इन वैल्यू से, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशंस, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है कि इसमें एक्साइटेशन टेबल फाइंड आउट, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिजाइन द सर्किट। तो अब इसमें फ्लिप फ्लॉप्स कितने यूज होंगे कि 3 बिट है यहाँ पे, वी नीड 3 डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स इसमें हमने चाहे। लेकिन अब डी फ्लिप फ्लॉप जो होंगे हमें देखना है कि उनके इनपुट पे हमें क्या, ठीक है ना। तो अब हमने एक्चुअली वी नीड 3 डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। सो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो नीचे जो मैंने आपसे बता दिया जो टेबल है, तो स्टेट टेबल, सिंपलीफाइड स्टेट टेबल हमने किया बनाया, कि अब हमें सेम टेबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई कैन राइट डाउन इट लाइक दिस वन, प्रेजेंट स्टेट, ठीक है ना। सो वी कॉल दिस टेबल एज एन एक्साइटेशन टेबल। तो उसमें हम लेंगे सपोज हम आउटपुट 3 फ्लिप फ्लॉप्स डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स ले रहे हैं। सपोज हमें 3 फ्लिप फ्लॉप जो है ए बी सी, सपोज ए बी एंड सी, उसके आउटपुट्स है 3 फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट्स है ए बी एंड सी। ये हमारा प्रेजेंट स्टेट बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद देन विल राइट इनपुट जो होगा इसका, ठीक है। इनपुट देन नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेट में हम क्या करेंगे, हम इसका फ्लिप फ्लॉप्स जो हम लेंगे उसका जो इनपुट्स हैं तो वो भी हमने इसमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट जो फ्लिप फ्लॉप्स इनपुट्स विद अलोंग विद द इनपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। अब सबसे पहले जो हमारा जो प्रेजेंट स्टेट है, तो प्रेजेंट स्टेट्स हमें हमारे जो है वो ये है, आप यहाँ पे देखो 000 0। अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक आल्सो इनपुट अलोंग विद दिस वन, मतलब 000 जब हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 है और हमारा इनपुट 0 है, तब हमने देखना है कि हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या है। सपोज नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे ये होगा इसका, ठीक है ना, प्रेजेंट स्टेट जो है। तो वी विल टेक दिस वन। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, आई विल राइट इट इन दिस along with this a b c and then x, along with the x। so अब यहाँ पे इट इज 000। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम दिस टेबल 0 प्रेजेंट ए बी सी 0 इनपुट है, ठीक है ना। जो फ्लिप फ्लॉप का स्टेटस है 000, और यहाँ पे आपको देखना है कि x भी 0 है, तो यहाँ पे x इज ऑल्सो 0। उस समय आपको देखना है कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेट जो है, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेट हमारे 010 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है इट इज 010, ठीक है। इन द सेम वे अब फिर आपको लिखना है कि 0 एंड जब हमारा x1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 0 0 1 इट इज x, तो ये हमारा ये है 0 सेम है बट x इज कॉल्ड 1। इन दिस केस नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0 1, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट है 0 0 1 है। यहाँ से देख के बनाना है आपको ये टेबल, ठीक है ना। अब उसके बाद आई विल राइट, पहले मैं सारे वैल्यूज लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देन 0 अब यहाँ पे 0 0 1 है, 0 0 1 and our x is 0,
तो नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 0 0, तो यहाँ पे लिखोगे 1 0 0 फ्रॉम दिस टेबल। उसके बाद 0 0 1 x इज ऑल्सो 1, तो 0 0 1 1, सो 0 0 1 x भी हमारा 1 है। तो अब यहाँ पे देखना है हमारा 0 1 0 है, ठीक है ना, 0 1 0 आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेट है 0 1 0 हो गया ये दो। अब यहाँ पे देखोगे 0 1 0 विद x 0, 0 1 0 0 1 0 विद x इज इक्वल टू 0, 0 1 0 विद x इज इक्वल टू 0, इट इज 0 1 1, यहाँ पे लिखना है 0 1 1। उसके बाद 0 1 0 बट व्हेन x इज 1, 0 1 0 व्हेन x इज ओवर 1, तो 0 1 0 x इज 1, तो इसमें 1 0 0 हमारा नेक्स्ट स्टेट है। अब उसके बाद यहाँ पे 1 0 0 x 0, 1 0 0 विद x इज 0, ठीक है ना, तो हमारा आउटपुट है 0 1 1। उसके बाद यहाँ पे 0 1 0, ठीक है ना, इट इज़ 1 0 0 एंड x इज 1, 1 0 0 x इज 1, 1 0 0 x इज 1, तो नेक्स्ट है 1 0 0। अब इन द सेम वे लास्ट जो है 0 1 1, हमारा x 0 है तो x 0, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या है यहाँ पे 1 0 0। अब लास्ट 0 1 1, तो अगेन यू विल राइट 0 1 1, लेकिन इन दिस केस में x इज इक्वल टू 1, तो x हमारा 1 है। आपको देखना है कि नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0 0, ठीक है, ये हमने वैल्यूज। अब इन द सेम वे आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम आउटपुट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर y इज आवर आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, ये तो डायरेक्ट लिखोगे, पहले 0 फिर ये 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 आउटपुट इज 0, यहाँ पे भी 0 लिखोगे। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगा ना, यहाँ पे भी 0 लिखना है। अब ऐसे चढ़ोगे 0 1, उसके बाद ये 0 लिखोगे, यहाँ पे भी 0 है, देन 1 1, फिर 1 0, फिर 0 1, ठीक है। तो ये हमने फिलअप तो वाई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे, तो लेट मी रब नाउ दिस, वी डू नॉट रिक्वायर दिस वन। तो अब हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप जो डी फ्लिप फ्लॉप है, तो उनके हमें इनपुट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब डी फ्लिप फ्लॉप जो इनपुट्स है, आप सपोज डी ए, ये तो एक फ्लिप फ्लॉप है, डी बी एंड से डी सी, ठीक है ना, ए बी सी हमारे 3 फ्लिप फ्लॉप जो हमने यूज़ करने हैं, क्योंकि एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें एक डिज़ाइन सर्किट करना है। तो जब हमें डिज़ाइन सर्किट करना है तो हमें क्या करना है, हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स है, ठीक है, एज्यूम करो ये पहला फ्लिप फ्लॉप है, वी हैव गॉट वन मोर फ्लिप फ्लॉप हियर एंड 3 फ्लिप फ्लॉप्स। ये तीनों क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें आपको डिज़ाइन करना था यूजिंग डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये सब हमारा ए फ्लिप फ्लॉप है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो क्योंकि डी टाइप है, यहाँ पे लिखेंगे डी ए, सो दिस इज डी बी एंड दिस वन इज डी सी, ठीक है। और ये सिंक्रोनस मोड में रखने हैं सारे, सिंक्रोनस मोड में यू हैव टू अप्लाई द कॉमन क्लॉक पल्स टू ऑल द 3। तो ये हमारा ये है, ठीक है। अब हमने देखना है कि सपोज इसका आउटपुट जो हमें यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आउटपुट ए है, इसका जो आउटपुट है बी, इसका आउटपुट है सी, इसका दूसरा आउटपुट होगा दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी बार एंड सी बार। तो ये सर्किट, अब हमने देखा है कि डी ए के आगे सर्किट क्या है, और जो हमारा वाई आउटपुट है वो कैसा होगा। यहाँ पे ये जो है डी बी के आगे सर्किट क्या है, डी सी के आगे सर्किट, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो दैट इज सो वंस वी हैव टू गेट दीज सर्किट्स बिहाइंड दिस डी ए डी बी एंड सी, तो वो कहाँ से हमें मिलेंगे, वी कैन गेट दीज फ्रॉम दिस अबव टेबल। तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि विल फर्स्ट कंप्लीट दिस, देन वी विल गेट द इक्वेशंस एंड देन वी कैन डिजाइन द सर्किट। तो ये हमारा ये है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब क्योंकि हमें डी टाइप फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स देखने हैं, तो और एक चीज़ आपको यहाँ पे पता है जो हम लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो डी फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल है, ठीक है ना, हमें पता है जो डी फ्लिप फ्लॉप का जो टेबल है, ट्रुथ टेबल पहले डी, ठीक है ना, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1। सपोज हम अगर ये जो इसका ट्रुथ टेबल है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 है, तो हमें पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप अगर इनपुट 0 है और स्टोर्ड वैल्यू 0 है, तो अगर क्लॉक पल्स दे तो आउटपुट क्या होगा, 0 ही होगा। अगर रिज्यूम करो 1 है तो इनपुट पे डी टाइप पे फ्लॉप, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा।
क्योंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप जो वर्किंग है आपको पता होगा, अगर ये डी फ्लिप फ्लॉप है, अगर इनपुट पे 0 है देन वी अप्लाई टू क्लॉक पल्स, इसके अंदर स्टोर होगा, आउटपुट पे अवेलेबल होगा। अगर आप यहाँ पे 1 रख रहे हो तो क्लॉक पल्स के बाद 1 आउटपुट पे आ जाएगा, तो वही है। तो अगर डी पे अगर 0 रखने हैं तो उसके बाद क्लॉक पल्स यहीं 0 आउटपुट पे आ जाएगा। अगर डी पे 0 है, इवन उसके अंदर स्टोर वैल्यू 1 है, लेकिन डी पे इनपुट है, जब आप क्लॉक पल्स दोगे आउटपुट 0 आ जाएगा। जैसे अगर 1 है इनपुट पे, स्टोर वैल्यू 0 है, क्लॉक पल्स के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 इनपुट पे भी है, तो यहाँ पे भी आउटपुट 1। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं वर्किंग ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप। लेकिन फिर हमने यहाँ पे एक एक्साइटेशन टेबल डिराइव किया था फ्रॉम दिस टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल में क्या होगा, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 विल बी गिवन टू यू। आपको इनपुट फाइंड आउट करना है। अब जैसे यहाँ पे 0 0 ये हो गया, तो अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 0 0 1 1 0 1, एज्यूम करो कि प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, तो हमें आपको इनपुट पे क्या होगा, सो 0 0 तो इनपुट पे क्या है 0। उसके बाद 0 1 है, तो 0 1 यहाँ पे है, इनपुट यहाँ पे 1 है। तो इन द सेम वे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 1 0 तो 1 0 देखो यहाँ पे है, तो 1 0 तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे दोनों 1 1 है तो आउटपुट डी पे 1 होगा। तो ये इस टेबल को वी कॉल दिस टेबल एज एन एक्साइटेशन टेबल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेकिन हमें ऊपर जो यूज करना है वो है टू यूज दिस एक्साइटेशन टेबल। अब एक्साइटेशन टेबल में क्या है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आप इनपुट और प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट अगर 0 0 है, तो इसका मतलब डी पे जो होगा वो वैल्यू क्या होगा, उस पे इनपुट पे 0 होगा। तो इसको हमने यहाँ पे यूज करना है। अब वो कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे ना, यू कैन चेक इट आउट हियर। ये भी मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्या करना है। तो आपको बताना है कि ये इन फ्लिप फ्लॉप्स की, ये हमारा टेबल हो गया, वी कॉल इट एक्साइटेशन टेबल। तो अब हमने क्या करना है, अभी ये वैल्यूज निकालने हैं डी, ये वैल्यूज। अब देखो आपको क्या करना है, अब पहले ए वाला केस में, अब ए पे प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, ये हमारा नेक्स्ट स्टेट है, ये ए बी एंड सी का नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है ना। तो अब प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट क्या है 0। अब इस टेबल में देखो प्रेजेंट स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 0, तो आपको बोलना डी, डी पे क्या होगा, क्योंकि ये ए फ्लिप फ्लॉप है तो डी पे 0 होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट ए पे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, हमने देखा 0 0 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी डी पे 0 होगा। अब यहाँ पे भी देखो 0 एंड 1 है। अब 0 1 पे भी क्या है 0 1, यहाँ देखो 0 1 पे 1 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1। अगेन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, 0 0 पे ही 0 ही है। उसके बाद यहाँ पे 0 0 पे अगेन यू राइट 0 है, 0 1 0 1 पे 1 है। फ्रॉम दिस टेबल एक्साइटेशन टेबल बता रहा है हमें 0 1 पे डी पे 1 है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। फ्रॉम टेबल 1 0 इज अगेन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 पे 1 1 पे देखो 1 ही है। 0 1 पे, दो 0 0 1 पे 1, एंड लास्ट जो है 0 0 0 0 पे 0 है। तो ये हमने ये फाइंड आउट किया, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट, ये जो हमारा जो डी ए पे जो हमने क्या होगा पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वी गॉट दीज वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये हमने फाइंड आउट किए। अब इन द सेम वे, अब आपको क्या करना है, अब इन द सेम वे आपको फाइंड आउट करना है जो हमारा बी फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे क्या होगा। तो बी फ्लिप के इनपुट क्या है, आपको आपको यहाँ पे बी का यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट देखना है और उसका नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पे 1 0, तो 1 0 पे हमने देखा 1 0 पे 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखोगे। उसके बाद है यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0, तो 0 0 पे 0 ही है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 0, यहाँ पे बी 0 है, 0 0 पे 0 आ जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 1 पे हमें पता है 1 है, ठीक है। 0 1 पे वी हैव गॉट 1। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखना है कि 0, यहाँ पे शायद हमने गलत किया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे बी इज़ 1, 0 1 पे क्या है, इट इज़ 1, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 0 1 पे हमारा 1 है, तो 1 0 0 ये आ गया 1। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 1 पे भी 1 है। फिर आप देखो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 0 पे हमारा 0 है। उसके बाद देखो 0 एंड 1, 0 1 पे हमारा 1 है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 0 पे 0 ही है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, 1 0 पे भी 0 ही है, एंड 1 0 अगेन यहाँ पे 0। तो हमने ये वैल्यूज
मिले डी के लिए। इन द सेम यहाँ पे में तो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है, तो वहाँ पे भी आप चेक कर लोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सी इज 0, यहाँ पे सी 0 0 0 पे क्या है 0, उसके बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 1 पे हमारा 1 है, उसके बाद 1 एंड 0 1 0 हमारा 0 है, ठीक है ना। इन द सेम वे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 0 पे भी 0 ही है। उसके बाद यहाँ पे 0 है, इसका नेक्स्ट स्टेट 1 है, 0 1 पे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 0 है, देन यू हैव गॉट 0 0 0 पे 0 है, देन यू हैव गॉट 0 हियर, यहाँ पे 1 है, 0 1 पे 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो आपका 0 होगा। यहाँ पे 1 है, हियर यू हैव गॉट 0 1 1 0 पे 0 है, वो लास्ट है जो 1, एंड यहाँ पे 0 1 1 0 पे हमारा 0 है, ठीक है ना। तो ये हमें आ गया ये, ठीक है ना। तो अब आउटपुट भी है, तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमें 3 इक्वेशंस निकालनी है, तो देन उसके बाद हम सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए आपने क्या करना है, जो इक्वेशन हमने निकालनी है, तो पहले हम देखेंगे सिंपलीफाइड इक्वेशन जो है इसमें निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है कि सपोज यहाँ पे पहले सपोज डी ए की निकालनी है मुझे, ठीक है ना, फ्रॉम दिस वन। तो जो यहाँ पे लिख सकते हैं डी ए जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना। अब डी ए में आपको देखना है 1 1 कहाँ पे है, ठीक है ना। या आप यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, तो इसका ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज जो 0 1 2 3 4 5 6 9, ठीक है। अब आपको देखना है कि यू कैन राइट द इक्वेशन फॉर दिस वन, एसओपी फॉर्म में लिख सकते हो। उसके लिए आपको देखो क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, आपको देखना है कि ये जो 1 है यहाँ पे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ठीक है ना। आप 1 देखोगे यहाँ पे, इसका डेसिमल वैल्यू है 2, दैट इज सेल नंबर 2 में 1 डालना है एसओपी में। उसके बाद यहाँ पे देखो कि इस कॉलम में डी ए के लिए मैं देख रहा हूँ 1 यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है इट इज़ 5, तो सेल नंबर 5। उसके बाद और एक 1 जो यहाँ पे है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है इट इज़ यहाँ पे जो है, अगर आप देखोगे ऊपर से स्टार्ट कर लोगे तो 0 1 2, तो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है इसका, या इसको सिंपल वी कैन आल्सो पुट इट इन दिस अनदर वे, तो इसमें 6, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसके, कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस वन, या ऐसे भी पहले चलो ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 1 आ गए, ये 1, अब ये वाला 1 जो है तो आपको देखना है इट इज़ 7, लास्ट जो 1 है यहाँ पे इट इज़ 8, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, तो करेक्ट, ये तो हो गया एक इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको क्या करना है डी ए के लिए, देन यू विल आल्सो फाइंड डी बी के लिए ऐसे इक्वेशन निकालोगे, आपको देखने हैं 1, ठीक है ना। तो वी कैन आल्सो, अब ये एसओ सर्किट है, इसको आप ध्यान में रखना, तो या वी कैन डू इट दिस वे, या ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट में। सपोज डी ए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 1 है, दिट इज थर्ड टर्म, तो यहाँ पे ये 2 है। अब यहाँ लिख लीजिए ए बार बी बार सी, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बार बी बार सी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आपको 0 है वहाँ पे ए बार लिखना है, जो 1 है यहाँ पे उसका विदाउट कॉम्प्लीमेंट, सी जो उसके वेरिएबल है सी, तो सी विल है, देन प्लस एसओपी फॉर्म में डायरेक्ट भी लिखो, ठीक है ना। ये उसके बाद ये 1, अब यहाँ पे और एक 1 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो देखोगे यहाँ पे इट इज़ 0 1 0, इट इज़ ए बार बी सी बार, क्योंकि 0 1 0 है, देन प्लस और एक 1 जो यहाँ पे है इट इज़ 1 0 0, दैट इज़ ए बी बार सी बार। उसके बाद लास्ट जो है 1 है, प्लस ये जो 1 है कॉरस्पॉन्डिंग इट इज़ ए बार बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कीप इट एज इट इज़, तो वी कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई दिस वन, ठीक है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं,
तो अब सिंपलीफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि हाँ, और एक चीज़ आपको इसमें लेना है, क्योंकि इनपुट तो इसमें 3 है। जो पहला वाला जो 1 हमने लिया, यू कैन, ये जो इसमें, सो ये जो ये था, यहाँ पे आपका x का वैल्यू भी लेना है। तो x का वैल्यू क्या है? इट इज़ 0। तो यहाँ पे यू कैन आल्सो राइट x बार, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी आपने 1 लिया, यहाँ तो हो गया ये। उसके बाद ये जो है, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये था, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, तो x विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और एक 1 लिया आपने, इट इज़, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, दैट इज़ x। और उसके बाद लास्ट जो ये वैल्यू लिया, तो यहाँ पे x इज 0, दैट इज x कॉम्प्लीमेंट x बार, ठीक है ना। तो अब इसमें ये जो हमने, वंस वी गॉट दिस इक्वेशन, इट कैन बी सिंपलीफाइड। तो आप सिंपलीफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल है a b c बार, ठीक है ना, एंड x अलॉन्ग में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर k मैप यूज़ करके, क्योंकि 4 वेरिएबल k मैप हमने यूज़ करना है इसमें, ठीक है। तो ये सेल नंबर 0 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब आपको क्या करना है कि यू विल राइट हियर ए बी सी एंड एक्स। ए बी सी 4 वेरिएबल है वहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 0 0। तो यहाँ पे यू कैन राइट इट इन दिस वे, आसानी के लिए यू कैन राइट इट ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ये जो ऊपर है, एंड सी बार एक्स बार, सी बार 0 0, दैट इज 0 1, तो 1 0 एंड 1 1, दैट इज सी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। ये एज पर दिस वन जो हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब आपको क्या करना है कि अब जो यहाँ पे जो टर्म्स हैं, सपोज ए बार बी बार सी बार, तो आप जो पहली जो टर्म है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे भी ए बार बी बार सी एक्स बार आ जाएगा, ए बार बी बार सी एक्स बार, तो यहाँ पे आपको 1 एंटर कर लेंगे। उसके बाद ए बार बी सी बार, ए बार बी, तो यहाँ पे अब सी बार एक्स, सी बार एक्स ये है, तो यहाँ पे भी 1 लिखोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर 2, तो ए बी बार ये है, सी बार एक्स, यहाँ पे भी 1 एंटर कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे ए बार बी, तो ए बार बी तो ये है, सी एक्स बार, तो सी एक्स बार लास्ट, तो यहाँ पे आपको 1 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखें कि सिंपलीफाई कर सकते हैं, हाँ यहाँ तो ये पेयर बन सकता है, तो ये तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा तो डी ए इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पेयर ये है, तो इसका इक्वलेंट आप निकाल सकते हो, ऊपर दोनों में कॉमन है ए बार, यहाँ से सी एक्स बार, देन प्लस ये तो एज इट रहेगा, इट इज ए बार बी सी बार एक्स, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये जो है इट इज ए बी बार सी बार एक्स, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हमने निकाली। इन द सेम वे हमें क्या करना है कि हमें इसमें डी ए की हमने निकाली इक्वेशन, तो फिर आप इसका सर्किट भी बना, डी ए के आगे जो सर्किट कैसा होगा दिखने में, तो इसका मतलब भी एक एंड गेट है, यू नीड 3 एंड गेट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, तो एंड गेट जो इनपुट हो के, इस एंड गेट के इनपुट ए बार सी एक्स बार है यहाँ पे, तो जैसे लास्ट क्लास में हमने जो डिज़ाइन किया था, तो सेम भी आपको क्या करना है, इसका जो सर्किट बनाना है वो फिर डी ए के आगे जोड़ना है, जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है डी ए फ्लिप फ्लॉप, उसके आगे ये सर्किट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इन द सेम वे आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ डी ए की निकाले, तो इन द सेम वे आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट फॉर डी बी, ऐसे ही के मैप सिंपलीफाइड निकालनी है इक्वेशन, और डी सी के लिए भी आपको सिंपलीफाइड इक्वेशन निकालनी है। और उसके बाद आपको जो आउटपुट है, आउटपुट के लिए भी आपको देखना है कि सिंपलीफाई यूजिंग के मैप्स हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो आप इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप इक्वेशंस निकाल के देन यू कैन ड्रॉ द सर्किट, ठीक है। तो अब मैं सपोज एक मैंने इक्वेशन निकाली, ठीक है ना, तो अब इसमें क्योंकि ये तो हमने सिंपलीफाइड इक्वेशन निकाली, इन द सेम वे आपको क्या करना है कि हमने और क्या, अब ये तो हमने डी ए के निकाली, इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट फॉर डी बी के निकालने हैं डी सी, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप्स उनके आगे सर्किट कैसा होगा वो ये 3 से निकालोगी 3, और आपका वाई भी है, वाई भी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक, चलो ये डी ए की इक्वेशन है, मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो फिर आप सर्किट खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो लेट मी फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर, ये तो एक हो गया हमारा, यू हैव टू नोट डाउन दिस इक्वेशन। तो उसके बाद
नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा जो अब है ये तो डी ए, अब डी बी के लिए हम देखेंगे इक्वेशन क्या आ जाएगी वहां पे, ठीक है ना। तो जो हमारा डी बी है, अब डी बी हमारा ये, अब देखो अब यहाँ पे इट इज सेल नंबर जो हमारा 0 है तो उसमें आपका 1 है, तो सेल नंबर 0 ये हमारी है, उसमें 1 है। अब देखो ये हमारे यहाँ पे है, फोर्थ पे है, यहाँ पे 1 है, तो फोर्थ देखोगे यहाँ पे 1 2 3 फोर्थ। अब यहाँ पे अगर देखोगे इट इज 0 0 1 1, इट इज सेल नंबर 3, तो सेल नंबर 0 3, एक तो पहले आपने इसमें 1 है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद देखना यहाँ पे ये तो हमने देखा। उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो है, तो अब यहाँ पे ये कौन सी सेल है, इट इज सेल नंबर 0 1 0, दैट इज सेल नंबर 4, सेल नंबर 4 में भी 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना आपको, इसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे और एक ये 1 है, तो ये इस 1 के लिए इट इज़ 1 0 0, इट इज़ 8, सेल नंबर 8 में 1 है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि बस 4 ही 1 आ गई, ठीक है, दीज आर 4 1। पहला 1 जो था इट इज सेल नंबर 0, ये जो 1 है ये फोर्थ लोकेशन 1 2 3 4, इट इज़ 3 3 में भी हमने 1 डाला। उसके बाद 3 के बाद 4 में 1 था, ये 4 है, उसमें भी 1 हमने डाला। उसके बाद ये है ये हमने देखा इट इज सेल नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे यहाँ देखना 1 0 0 0, इट इज सेल नंबर 8, सेल नंबर 8 में भी हमने 1 डाला। अब देखना कि क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि नहीं। तो आप सिंपलीफाई करने के लिए तो आइसोलेटेड 1 है, उसके अलावा यहाँ पेयर बना सकते हो, और ये और पेयर इसके साथ भी बन सकता है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाएंगे। अब हम पहले देखेंगे डी बी के लिए जो इक्वेशन हमें मिल रही हैं। एक तो ये हमारा आइसोलेटेड 1 है, इट विल ए बार बी बार सी एक्स देन प्लस ए बार बी बार सी एक्स। उसके बाद आप ये तो इसके लिए आइसोलेटेड के लिए प्लस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं। सपोज अगर मैं ये वाला जो हाफ इधर है इसका हाफ इधर है, ये पेयर दूं तो इन दो में कॉमन क्या है, बी बार, तो लिखोगे बी बार, ठीक है, जो इनमें कॉमन है। उसके बाद यहाँ इट इज सी बार एक्स बार देन प्लस, ये तो हो गया हाफ आपकी जो ये वाला पेयर जो था, ठीक है। सो दिस इज 1 ग्रुप 1, ये हमारा 2 है, 2 के लिए ये हो गया। अब थर्ड ग्रुप है, ये हमारा है। अब थर्ड ग्रुप में हम क्या, ये एक पेयर है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर इन दो में कॉमन क्या है, इट इज ए बार, ठीक है, इंटू सी बार एक्स बार। तो ये ऐसे हमने निकाली। और एक यहाँ पे भी ये 3 एंड गेट्स यूज होंगे, मीन थ्री इनपुट्स एंड इसके जो 1 बिट, देन यू विल 1 और गेट जो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। तो ये हमने किसके निकाले, डी बी। इन द सेम वे आपको यू हैव टू फाइंड आउट द डी सी के लिए आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही निकालोगे, तो और वाई के लिए आपको निकालनी है सिंपलीफाइड इक्वेशन। यू विल ट्राई फॉर दीज टू, ये तो आप आसान है, देन आपको सर्किट जोड़ना है। I will check it, just it is a sort of assignment to you to find the simplified equations for dB, DC and Y, then draw the circuit. तो आप ये खुद draw करके then you will show it to me in the next class before starting further, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है, thank you very much.